न्याय जब नहीं मिलता है, निराश हो जाता है आदमी, कहीं से न्याय नहीं मिलता है, तो कुछ न कुछ तो करते ही है। On the Sambhal issue, Congress party is very clear that this police has been communalized, and the way the UP police is acting as a BJP's wing. संभल में पुलिस और प्रशासन ने और अदालत ने मुनज़्ज़म साजिश रच के there is no stay on the survey. Survey is already conducted. Now the report will be filed in the seal cover. पूरी तौर पर हरि मंदिर को कन्वर्ट कर दिया गया जामा मस्जिद में। Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to the News Hour Friday Spotlight Show. Ladies and gentlemen, what is the essence of our Samvidhan, our Constitution? The answer is crystal clear. It is the rule of law. Today, as the larger national debate around survey demands for various masjids across the country centers around provocation, political posturing and attempts to mislead, it is the rule of law that must prevail, standing firm against chaos and confusion. In the Shahi Jama Masjid in Sambhal case, the Supreme Court of India today has made its stance clear. It has directed the Masjid Committee to approach the Allahabad High Court with its petition seeking whatever remedy it wants in the Jama Masjid case. While refraining from commenting on the merits of the case, the Supreme Court has paused trial court proceedings until the High Court issues further directions. The Apex Court has neither quashed the petition nor junked the survey conducted so far. What the Chief Justice of India, Justice Sanjeev Khanna, has called for is just strict measures to be in place, instructing the Uttar Pradesh administration to establish peace committees and ensure there are no further incidents of violence. The matter is further posted for a hearing on January 6th. Today, under this heightened vigilance, Friday prayers were conducted peacefully in Sambhal. The order was clear: no violence in the area, which saw stone pelting and police action leading to death of 4 youth and several policemen being injured over the last week. But it is the political war of words that refuses to die down on this issue. Leaders like Akhilesh Yadav and Asaduddin Owaisi, who claim to uphold the Constitution, have chosen not just to blame the police and the Yogi Adityanath government, but their leaders have gone on an overdrive even to malign the judiciary. And then there are others like Tawqir Raza Khan and Mehbooba Mufti, who have been resorting to fear-mongering to keep the Sambhal fires simmering. Rather than condemning the mob violence unequivocally, a group of politicians from the opposition bloc have indulged in what can only be described as dangerous appeasement politics. हमारे जो ज़ियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है। संभल में दंगा नहीं हुआ है। संभल में पुलिस और प्रशासन ने और अदालत ने मुनज़्ज़म साजिश रच के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये लोअर कोर्ट इस देश में आग लगवा देंगे, बता रहे आप। और सत्ता में रहने के लिए कुछ लोग इस देश को जला दें और जलाने के बाद राष्ट्र पर भी शासन करें, उससे भी पसंद आएंगे। Viewers, Sambhal is a wake-up call for all of us. Now,
The ASI, the Archaeological Survey of India, in its affidavit has made a slew of stunning allegations. The ASI highlighted how their officials were not even allowed to do their job and enter masjid premises in Sambal. How they were not allowed unhindered access to the mosque. What's even more sensational is that in an effort, the ASI has now claimed that the masjid committee made modifications to the site without even letting the ASI know, in a building, in a site that is protected by the Archaeological Survey of India. Now, viewers, the judiciary will deliberate on the claims made by all sides, especially in the context of the much talked about Places of Worship Act. But the rising trend of justifying mob rule, mobocracy, provoking unrest and flaring up passions for electoral gains is a direct attack on our democracy and our constitution. This toxic trend not only undermines judicial institutions but also creates an environment where violence is legitimized at the cost of governance and the rule of law. और हमारी प्राथमिकता है कि हम प्रदेश में संभल में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करें, हर स्थिति में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे हम, और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं, जो भी दोषी होगा निष्पक्ष जांच होगी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है, जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई, और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। So, ladies and gentlemen, the Motorola legitimate question we are asking on the news hour tonight. Nyay from courts is equal to provocation? That's the question and that's the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. Joining the debate tonight, Siddharth Yadav, national spokesperson of the BJP, joining me in the studio tonight. Also joining me is Vishnu Shankar Jain, lawyer in the Supreme Court, who is the petitioner in this specific case. Harshvardhan Tripathi, senior journalist. Also joining me tonight, Romesh Sabarwal, leader of the Congress party. With me in the studios, Dr. Mumtaz Alam Rizvi, political analyst, Vivek Srivastava, political analyst. But my first question goes to Mr. Gaurav Chachra, national spokesperson of the Samajwadi Party. And Gaurav Chachra जी, मैं पूछना चाहती हूँ, जो भी इस देश में होगा वो कानून से होगा, वो देश के संविधान से होगा. Is there any doubt in your mind? Why then are leaders in your party coming out and saying there is, छोटे-छोटे जज जो आग लगवा रहे हैं, कोर्ट जो है वो देश में आग लगवा रहे हैं, पुराने CJI ने जो है वो फ्लड गेट्स खोल दिए थे. जो हो रहा है कोर्ट में हो रहा है. आपको कोई भी दिक्कत हो, हायर कोर्ट is available and that's exactly what the Supreme Court has said today. Go to a higher court and get the remedy that you want. Why was there a support of the crowd's violence and mobocracy in Sambal over the last 5 days? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने. जो होएगा संविधान के प्रति होएगा, संविधान के हिसाब से होगा, लेकिन आपसी भाईचारा और सौहार्द को बरकरार रखना भी हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है. पक्ष के साथ साथ विपक्षियों का भी नैतिक जिम्मेवारी है कि देश में प्रदेश में अमन चैन की राजनीति हो और आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहे. संभल की अगर मैं बात करूं तो एक बार सर्वे होने के बाद दोबारा सर्वे हुआ तो वो लोग कौन थे जो साथ में जाकर नारेबाजी कर रहे थे? आखिर धारा 144 लगे होने के बाद भी उन्होंने नारेबाजी कैसे किया? कि कितने लोग थे वहां पे? क्यों ऐसा आपसी भाईचारा को और सौहार्द को बिगाड़ा गया? उससे पहले जब सर्वे हुआ तब तो कोई अगजनी नहीं हुई, तब तो कोई लाठी डंडा नहीं चला, तब तो किसी की मौत नहीं हुई. आखिर ये क्यों हुआ है? आखिर ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है
फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। सरकार ने जानबूझ के ये कराया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपसी भाईचारा और सौहार्द बिगड़े, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश उपचुनाव का नतीजा आया उसके अगले दिन। जो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में इन्होंने धांधलीबाजी की थी, मुझे लगता है ये लोग मैनिपुलेशन की और नेगेटिव नैरेटिव जो सेट करते हैं जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से, इस वजह से इन्होंने ये शादी रची है। ये बेहद ही निंदनीय है, इसकी हम निंदा करते हैं। और मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट है इसको अच्छे से संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि हाई कोर्ट इसका फैसला लेगा, हाई कोर्ट अपने हिसाब से इसको करेगा। तो ये wasn't this available? This recourse was available to everybody who was against what the district court had said. Siddharth Yadav, ultimately वो टीस निकल कर आ ही गई बाहर। चुनाव के बाद ये हुआ। Why is election of 9 bypoll seats to the assembly become really the eye of the storm? कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये मुद्दा इस मस्जिद के मुद्दे से जुड़ कहां गया, कैसे? नरिका जी, डेफिनेटली। और ये सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, ये जो लीडर्स जिस प्रकार की बयानबाजी आज उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, देश के किसी भी हिस्से में करते हैं, दिस क्लियरली शोज व्हाट इज द रियल इंटेंट बिहाइंड दिस। माय फ्रेंड फ्रॉम समाजवादी पार्टी वाज सेइंग देश तो चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, पर आपसी भाईचारा और सौहार्द भी हमें देखना है। आपसी भाईचारा और सौहार्द संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान में जिस चीज का प्रावधान लिखा गया है, अगर उसको फॉलो किया जाएगा, एंड इफ एनीबडी चूजेस कि हम जाकर के दंगा फसाद करेंगे, उसकी खिलाफत करेंगे, आगजनी करेंगे, आग लगा देंगे, लोगों को मार देंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रिवेल। द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट इज गॉन, द गवर्नमेंट्स ऑफ अपीजमेंट आर गॉन। Now, no government is there either in Uttar Pradesh or in the country which is going to sit and clap. अरे वाह, संविधान को थोड़ी देर हम साइड में रखते हैं, आप लोग आइए, आग लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए। The Archaeological Survey of India is saying, the officers are saying that we were not allowed to enter the temple, not on one occasion, on different occasions. Earlier also, in different years, they were not allowed to enter. Who are these people? How can they stop? The courts of our country are ordering a survey. If any rights of anyone are affected by that, they have a proper legal recourse. They can go to that. But the people who choose to take to the streets and threaten the armed janta of the state or of the country, they are not going to be left over. And when you say कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर तो उस दिन होगा जब ये दंगाई बाहर खुलेआम घूमेंगे और खुशी मनाएंगे। खुशी नहीं मनाएंगे। ड्रोन से सबकी रिकॉर्डिंग हुई है, सबकी वीडियोग्राफी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर उसको कहा जाता है कि कोई भी जो संविधान और कोर्ट के खिलाफ जाकर के सड़कों पे अपनी मनमानी से आगजनी करता है, उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करती है या नहीं करती? हमारी सरकार बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेगी। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ है। आपके जमाने का लॉ एंड ऑर्डर ले रही है, इस पे क्या बोलेंगे आप? में नहीं बोला था, आप इसके जमाने का लॉ एंड ऑर्डर आप इसके बता दीजिए। आपके जमाने का में है तो सत्ता का आनंद लेगी, आपके पेट में क्यों दर्द हो? यूपी पुलिस भाईचारा कहां है? यूपी पुलिस सत्ता का आनंद ले रही, जबरदस्ती। ओके, दैट्स अनदर चार्ज। यूपी पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है। यूपी पुलिस कोई सत्ता का आनंद नहीं ले रही। सत्ता का आनंद तो उत्तर प्रदेश की जनता ले रही है, जो आप लोगों की बेड़ियों से बाहर आ चुकी। सत्ता का आनंद तो वो आम जनता ले रही है, जिनके ऊपर पहले जाके माफिया उनकी आबरू पर हाथ डाल दिया करते थे, उनकी जमीनों को लूट लिया करते थे। सत्ता का आनंद तो जनता का। पहली बार मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने किसी डीजीपी को फटकार लगाई है, जस्टिफाइड। पहली बार लगाया सुप्रीम कोर्ट ने किसी के डीजीपी को फटकार लगाई है। The constitutional statutory bodies are conducting the survey. All authorities are following the orders of a court of this country. And some people choose to come out and say, हम ये नहीं करने देंगे और दंगा करेंगे, and law and order maintain करने के लिए और आपसे सौहार्द के लिए। Just give me a minute. Vishnu Jain ji, I want to get you in because there have been charges made कि वहां पर sloganeering होगी। I also want to bring before you the ASI affidavit that has been presented in the court, and this affidavit says the ancient monument at Sambhal was declared protected in the year 1920, यानी कि आज से 1 सेंचुरी पहले ये प्रोटेक्टेड है। Then the ASI affidavit also says that the management committee involved in the monument has carried out various interventions, additions, modifications at the monument, which is banned under for any monument under ASI, and they don't even allow inspection by the ASI team. Is this the rule of law and constitution that is being followed in the Sambhal monument? See, Nalika, the point is this.
I will answer to the issue of sloganeering as well as answer to the issue that why second survey was carried out. But the moot question in this case is that when, and I want to ask this question to all the four respected panelists, that please answer, sir, that if any monument is protected by the ASI, whether ASI has to be in possession of that area or some other elements have to be in possession of that area. As per the ASI Act, which is a central act passed by the Parliament, just like Places of Worship Act, ASI Act 1958 mandates, and it's the duty of the ASI to have possession over the protected monument. And ASI is saying that I am not able to get into my protected monument. What are those reasons? I want to ask that ASI is not able to get entry into their own monument. Is it because of mobocracy? Or is it because of domination of a particular section of the society? And precisely this is what our relief is, that this is a monument protected by the ASI way back in 1920. Please, we are asking the ASI to take back possession of this monument. And let me tell you, Navika, that as per section 18 of the ASI Act 1958, the ASI has to be in possession of the monument and they will grant right to access. For example, can you imagine a situation that Taj Mahal ASI is not in possession? In Taj Mahal, who is in possession? ASI is in possession. They allow Friday prayers by the members of the Muslim community to offer namaz. In the same way, this had to happen in this monument. And let me tell you, ASI has given a very, very serious affidavit. ASI has said that there are being modifications which have been made in this monument, which is completely against the provisions of law. So now you have to curb this argument. तो उसके लिए आपने क्या किया कि विष्णु शंकर जैन वहां पे गए, उन्होंने वहां पे स्लोगनिंग कर दी, उन्होंने वहां पे जय श्री राम के नारे लगा दिए, जिसकी वजह से वहां दंगा हो गया, विच इज एब्सोल्युटली फैक्चुअली रॉन्ग. नाविका, आई वांट टू, मैं चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं हर एक चैनल पे और यही बात बोल रहा हूं कि मैंने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए. प्लीज मेरे को चारों लोग वीडियो दिखाओ कि विष्णु शंकर जैन ने जब वो कोर्ट की प्रोसीडिंग में गया हुआ था जय श्री राम के नारे कहां लगाए. मुझे दिखाओ ना, मैं अभी डिबेट खत्म कर दूं. जवाब वापस आ रहा है सर, जस्ट अ मिनट, आई विल लीव द डिबेट राइट नाउ. नाविका, आई अपोलोजाइज कि मैंने जय श्री राम के नारे कहां लगाए. ओके, शो मी, डू यू हैव एविडेंस कि उन्होंने नारे लगाए? वीडियो है जिसमें जय श्री राम के नारे लग रहे हैं. आप चल रहे हैं, सुनिए, एक मिनट, वन एट ए टाइम. नहीं हुआ. अब मैं बताऊं करके बोलते. देखिए विष्णु, हमारा मेरा ये कहना है, इसको एक हेल्दी स्पिरिट में लीजिए. आप एक अच्छे लॉयर जरूर हैं, लेकिन आप एक मिसचीफ मेकर हैं. आप पिटिशनर भी बनते हैं. नो, आपने मुझे बोलने दीजिए ना. आप सुनिए ना सर, एक मिनट. नो सर, यू आर मोर ऑफ अ राइट विंग एक्टिविस्ट जिसका काम सिर्फ गड़बड़ियां करना और देश के सौहार्द को बिगाड़ना है. यू आर लॉ चला. अग्रीड, लेकिन देश में दंगे नहीं करवा. मैं लॉ चला की आइडियोलॉजी को नहीं मानता. जब आप कैसे पता चला कि आप क्यों जा रहे हैं? How can you tell me as a mission maker? How can you use this term? I am a lawyer in this case, sir. Yes, of course. I have been engaged. Yes. I am performing my professional duties. So please mind your tongue. Agreed. But then you are taking only those cases which are causing problems in the country. Who are you to tell me? एक मिनट. उज़ैफा, मैं ये कह रहा हूँ, उज़ैफा अहमदी साहब, इनके मुंह से एक शब्द निकालिए. उज़ैफा अहमदी साहब, सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल साहब, ये सब मिसचीवियस है, क्योंकि ये लोग वही केस लेते हैं जो इस देश के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है. ज्ञान व्यापी के केस में उज़ैफा अहमदी अपीयर हो रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि में भी उज़ैफा अहमदी अपीयर हो रहे हैं, इसमें भी उज़ैफा अहमदी अपीयर हो रहे हैं. लेकिन वकील भीड़ को लेकर I want to ask you two questions. Yes. One question, a simple question. A lawyer can pick up any case that he wants, okay, and he thinks he can argue, his client thinks he can argue, the client will come to him. Okay. That's the way law functions, right, and a lawyer is free to take up a case, right, so long as he fulfills the conditions of the court and the bar association. Okay? Okay. So you cannot prevent Mr. Vishnu Jain from... No, I'm not preventing him. But why are you calling him mischievous? You are also mischievous. You are also mischievous because you come to debate. So you are also mischievous. Number two. आप वकील को टारगेट कर रहे हो. एंड इंटायर वकील, इंटायर एडवोकेट कम्युनिटी इज अगेंस्ट यू. आप ये समझ लीजिए.
नहीं, आप नहीं, किसी आप आदमी थ्रेटन का मत राइट टू करिए मुझे। रिप्रेजेंट नहीं छोड़ सकते। नहीं, बात तो होना है। आपको भी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, Yes. आपने कहा कि वो जा रहे थे, नारे उठा रहे थे, जी। एंड ही वॉज टेकिंग फॉलोअर्स विद हिम. I want to just say he is become a popular man. He's been on television debates, as have you been. Yeah. Now, when you go out, many people recognize you. Yes. They will recognize Gaurav Chachra also. They will recognize Siddharth Yadav. They recognize Harshvardhan Tripathi ji. They recognize me. Yes. Now, some people come and stand. आपने नहीं बुलाया उनको, वो आके खड़े हो जाते हैं. Will you hold that against him? नो नो, बट देन मिस्टीफ वॉज कॉज और नॉट. आप सुनिए, मेरे को बोलने दीजिए पहले. विष्णु, मेरे को 10 सेकंड बोलने दीजिए, फिर काउंटर करो आप. ओके. वीडियो था, पूरी दुनिया ने देखा. और प्रश्न है जो दुनिया ने पूछा. वीडियो में वो बोल रहे थे. सुन लीजिए एक मिनट. वीडियो में वो बोल रहे थे. आप चल रहे थे, मैं जवाब. आपके साथ एक पुलिस वाला भी था, आपको एस्कॉर्ट कर रहा था. आपके ठीक पीछे, आगे पीछे, लेफ्ट राइट सेंटर लोग थे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे. आपने बोला साहब एएसआई को फॉलो नहीं करने दिया गया रोज. हम आपके साथ हैं, आप ठीक हो, एएसआई को फॉलो करने देना चाहिए. ये जय श्री राम के बीच में आ जाता है हर बात. एक मिनट, 10 सेकंड. हिमाचल, नहीं, हिमाचल प्रदेश की मस्जिद होती है तो वहां लोग पहुंच जाते हैं साहब. वो कानून अपना रास्ता ले, लोग पहुंच के हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं. बाबरी मस्जिद के अंदर भीड़ जाती है, तोड़ देती है. क्या वो कानून का पालन था? नाविका जी, क्या बाबरी मस्जिद को तोड़ना कानून का पालन था? अभी आपने एक बात बोली. Okay. Now you respond to the specific. He has now made an allegation against me that when I was going, along with me there were certain people who were raising the slogan of Jai Shri Ram. Now point is, first you have to understand that at what time the slogans were raised. You have to understand that. Yes. According to me, and I am telling you with lot of sense of responsibility, मैं आपके सामने एफिडेविट दे सकता हूं, कहिए यहाँ कटघरा बना दीजिए, उसमें एविडेंस भी दे सकता हूं. वो नारे 11 बजे लगे थे जब ये सारा सर्वे ओवर हो गया था और जब मैं निकल रहा था. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, वो नारे वहां के स्थानीय लोगों ने लगाए, मैं उनको नहीं जानता. मैं जब वहां से निकला, देन द एसएचओ कोतवाली सेड, सर ये शेप पैसेज है, चारों तरफ पत्थर चल रहे हैं, आगजनी हो रही है, आप वहां से नहीं जा सकते, आप इधर से निकल जाओ. तो जब मैं उधर से निकल रहा था, लोगों ने मुझे देख के कहा, विष्णु भैया जय श्री राम. मैंने एक शब्द भी नहीं बोला. एंड मैं रोक रहा था. मीडिया वाले कह रहे थे कि सर आपसे बाइट लेनी. मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ पे बाइट नहीं दे सकता. और मैं सीधे कोतवाली पुलिस स्टेशन पे आके रुका हूं और मैंने सिर्फ एक लाइन की बाइट दी है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में सर्वे पूरा हुआ. अब इसमें मेरी कहां से गलती है नाविका जी, आप मुझे बताओ. और आपकी इस हेट मॉन्गरी की वजह से आई एम रिसीविंग दैट थ्रेट्स कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए. और पूरा जो समाजवादी पार्टी के हमारे यहाँ पे भाई साहब बैठे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि विष्णु शंकर जैन को कब गिरफ्तार करोगे. इसकी वजह से दंगा हुआ. 5 लोग इसके वजह से चैनल में लिखा है जय श्री राम के नारे, जामा मस्जिद में घुसे हिंदू, भयंकर दंगे. ये फेक न्यूज है. कहां से आ गई? ये फेक न्यूज है. छापा है, एक तरफा हिंसा, दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे. जो आप कह रहे हो आप अकेले नहीं देखो, और सामने बंदा ऐसे कैसे चल रहा है? हमारे चैनल ने नहीं कहा है. मैं नाम नहीं ले रहा, किसी ने भी. But I cannot. मैं वहां नहीं था. मैंने one question. I want to ask one question, and that is the point of order. I want to ask you, why is Jai Shri Ram a provocative slogan? हर्षवर्धन त्रिपाठी, मुझे बता दीजिए. जय श्री राम से लोग प्रवोक हो जाते हैं, वो भी भारत जैसे देश में. नविका जी, बहुत सीरियस बात अभी विवेक जी ने इस डिबेट में कही. ये बांग्लादेश नहीं है कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ कोई वकील उनका खड़ा हो और उसको पीट कर मार दिया जाए. ये बहुत खतरनाक बात इन्होंने कही कि हिंदू पक्ष के लिए अगर कोई वकालत कर रहा है, कोई वकील है, कोई वकालतनामा लगा रहा है तो मिस्चीवियस एक्टिविटी है. ये बेहद खतरनाक है. भारत के लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किसी ने नेशनल टेलीविजन पर नहीं किया होगा. और अगर कोई भी इस देश में क्या हिंदू पक्ष की बात करना या जय श्री राम का नारा लगाना, वो किसी भी तरह से कोई ऐसी गतिविधि होगी जिसको आप मिस्चीवियस कह रहे हैं. नहीं, हमने सपोर्ट किया है. नहीं, आपने बिल्कुल नहीं किया. नो, सॉरी. और ये बांग्लादेश में मैंने उनको कहा है अत्याचार हो रहा है, एएसआई के लिए लड़ रहे हैं, सही है. और एक ऐसे ही केसेस को उठाते हैं. आपकी बात आप हर डिबेट में एंटी मोदी पोजीशन ही क्यों लेते हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं, वो आपकी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी है. 30 सेकंड. आइडियोलॉजी नहीं. आप ये बताइए, क्या आरोप लगाया गया? विष्णु जैन गए, जय श्री राम के नारे लगाते घुसे, इससे पूरा दंगा हुआ. झूठ बोला गया. बाद में पता चला
कि भैया विष्णु जैन तो 11 बजे जब निकल के जब हो चुका था, जब पत्थरबाजी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ के लोगों ने लगाया, आपने नहीं लगाया। यानी इस मामले में पॉलिटिकल पार्टी इतने आपके साथ नहीं, आपके साथ के भी हो तो क्या दिक्कत। मैं तो कह रहा हूं जिस तरह से झूठ बोला गया सर्वे के समय में सारी पत्थरबाजी हुई, जब वो एज अ वकील जा रहे हैं, पत्थरबाजी करने वाले लोग थे, उस पर ये एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। और आप गलत कह रहे हैं। के लिए कोई वकील है तो उसके लिए थ्रेट पैदा सुन लीजिए, चाहे खतरनाक है। नहीं, आप गलत है। आप सुनिए, सोशल के लिए अच्छा नहीं, लेट मी ऑल्सो, ये कतई अच्छा नहीं। और ये अच्छा है कि सारी मस्जिदें खोल डालो, अब अजमेर शरीफ भी पहुंचो, ये अच्छा हो रहा है। क्या मतलब, जो समाज को डिवाइड कर रहे हैं। किसी मस्जिद में एसआई को भगा दिया गया, मुस्लिम मौलजा हो जाए, वहां एसआई नहीं काम करेगा। अरे ऐसा इस देश के इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए। श्री राम कहां से आ जाता है? देश के इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए, एसआई की तरफ से लड़िए, के साथ खड़े हैं। सुन लीजिए, जय श्री राम इतनी दिक्कत क्यों है? अगर विष्णु जैन दिक्कत है, जो एफिडेविट आपने दिखाया है, दिक्कत है। अगर विष्णु जैन एएसआई के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम विष्णु जैन के साथ हैं, सभी साथ हैं। सुनिए, लेकिन अगर आप उसको एक हिंदूवादी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत है। जेंटलमैन, I want to ask रोमेश सब्बरवाल जी। रोमेश सब्बरवाल जी, किसी को कौन सा पॉइंट ऑफ लॉ उठाना है कोर्ट में, क्या वो विवेक श्रीवास्तव जी तय करेंगे? ही इज सेइंग इफ यू फाइट ऑन द बेसिस ऑफ एएसआई नॉट गेटिंग कंट्रोल, वी आर विद यू, बट इफ यू फाइट ऑन द बेसिस ऑफ जय श्री राम, वी आर नॉट विद यू. How does he get to choose? Isn't it the right of whoever is the petitioner and his lawyer to raise the point of argument as they see the point of law? How can anybody dictate that? Madam, I was listening your debate from last half an hour. I feel so sad, the Britishers have come in our country right now. My submission is only this, that we are a literate country. We are going up and up day by day. The Mughals have gone, the Britishers have gone, we got the independence. Our economy is rising every day, and we are literate enough. We are going to space, and we are talking about all this. If the ASI has protected the monument, that is the ASI duty to take the possession of that masjid. That is the duty of the ASI. I don't know why we are politicalizing the ASI's affidavit says they are not being allowed to go inside. And if the ASI tries to go there zabardasti, tomorrow you will say they have created a provocation. There is violence. ASI कितने साल से वहां नहीं है, और जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग थे उनमें से कितने लोग गए कि ASI वहां क्यों नहीं, मुस्लिम बहुल हो गया तो वहां रोक दिया गया? जरा बताइए कौन है वो? FIR हो रखी है। क्या शफीकुर रहमान किस साल करिए, कब करिए? उन्होंने किया, बताइए ना, डेट बताइए FIR की जरा नीचे देखिए। नहीं तो आप कब करिए FIR? करिए FIR। आज आप बिना फैक्ट क्या है? नो, वेयर इज द FIR एंड व्हाट इज द डेट ऑफ द FIR? बोला जो दूसरे किसी ने कह दिया, आपने विष्णु जैन पे आरोप लगाया। issue here is, if the country is developing, so should we stop raising questions, or should individuals in this country lose the right to raise questions in a court of law, which is the constitutional way of raising issues and disputes? I want to ask you, literacy means you cannot raise your issues constitutionally? Ma'am, you're totally right. I appreciate what you're saying. My submission is that the ASI is the victim in this. Why they are not taking the initiative? Whether it was my government, whether it is their government. एक second, समझ नहीं रहे। That is listen, ASI can go to the court. Why not? Why the ASI is not doing their duty? What issue? Yes. Why the AICC has not taken the initiative since 1947? My submission is that the ASI must go. And I am hopeful that the Supreme Court has given the good direction today that the High Court will listen to this. इस देश में न्याय मिलेगा। दोनों पार्टीज को जो पॉलिटिकलाइज करना चाहते हैं, धर्म के नाम पर कितना इस देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, चाहे वो A पार्टी हो चाहे B पार्टी हो, इट इज नॉट एडवाइजेबल। हम लोगों का जन्म जब होता है, भगवान हमें किसी के घर में भी माँ बाप चुन के नहीं मिलते, धर्म चुन के नहीं मिलते। आई बिलीव दैट वी आर ऑल इक्वल। But the Congress party which you represent
represent, the Congress party for years has never objected. So you want future generations never to question the so-called norm that exists? Siddharth Yadav ji? Navika ji, Congress party has never objected in the history. Leave that. If Congress party can take this position today, I challenge him. Can Rahul Gandhi come and say that ASI should take possession of this monument? Can other leaders, can Samajwadi parties, Akhilesh Yadav can come out and say that ASI has not taken the possession? Why I was not objecting while you were speaking. Can Akhilesh Yadav go out and say? If you go and speak Jai Shri Ram. But why? How are you to ban speaking of Jai Shri Ram? And I'll come to that. Because the entire issue is about Jai Shri Ram. Vivek ji is very right. Never. Their entire issue is about Jai Shri Ram. We are more followers of Ram than you people. Luckily, today in India, we do not have kangaroo courts like the communists have. But probably Vivek ji is very, influenced by that. The courts of our country are very democratic, very constitutional. The Constitutional Court has ordered something. Now, we are not Bangladesh. No commissioner of our country can come out and say जय श्री राम लगाने वालों को जैसे अभी बांग्लादेश में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इट्स आतंकवादी, हमारे देश में बिल्कुल नहीं है. जय श्री राम हमारे देश में नहीं लगेगा. फाउंडेशन रखी है कांग्रेस ने. प्रॉब्लम इज ये कांग्रेस ने फाउंडेशन रखी है. कोर्ट्स ऑर्डर Foundation that has been put by the Congress is one of appeasement. I was not objecting. We are all equal. सर मेरे पास भी आवाज है, आप भी बोल रहे थे. We are all equal. सुन लीजिए. मैं किसी के बीच में नहीं बोला था. प्रॉब्लम इज नाविका, नाउ टुडे यू शुड नॉट फॉलो द कोर्ट्स ऑर्डर बिकॉज आप तो जय श्री राम बोल सकते हैं. आप जय श्री राम नहीं बोलते होते तो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करिए. और जय श्री राम वाले कैसे करेंगे? दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, विवेक जी सिंह, नाउ विष्णु जी और anybody else in this country, if they have to go and fight a case for Hindu rights, for cultural rights, for statutory rights, this is a case where ASI has to take possession. For such rights, you should balance. You should take the case of Rahul Gandhi's bail. You should probably take other cases also. Why are you only taking these cases? A lawyer has his own discretion. Agreed. Where is it written? I'll counter this. Number one. But the problem is, आप ऐसे ही बता जाते हैं खुद अपने आप को. मैं बस इतनी बात बोल देता हूं. अभी इन्होंने एक बात बोली थी और रह गई थी. इन्होंने बोला जय श्री राम का नारा लगा करके आप मुसलमानों को नीचे दिखाना चाहते थे. विष्णु जी ने उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट किया था. इनने बोला, विवेक जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है. अल्लाह अकबर का नारा लगता है तो किसको नीचे दिखाते हैं? हाँ, सुन लीजिए. अब आप सुन लीजिए. जय श्री राम का नारा किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है. अपनी इस कम्युनल सोच से बाहर निकलिए. जय श्री राम नो the same argument. Jai Shri Ram is a war cry. Yes. How can it be a war cry? भाई विष्णु जैन के साथ जो लोग चल रहे थे, एक मिनट, आपके बात बोल सकते हैं अल्लाह अकबर. अल्लाह अकबर बोलना. अगर अल्लाह अकबर बोल के मैं इनको चैलेंज करूंगा तो वो गलत है. आप बोल सकते हैं बात. चैलेंज क्यों समझते हैं? अब मेरी बात आपको इतनी इरिटेशन जय श्री राम से क्यों होती है? क्योंकि जय श्री राम बोलना, ये वकील वहां जय श्री राम बोल के ये नहीं गए जय श्री राम बोलते हुए, लेकिन जय श्री राम बोलना कम से कम अपने आप को करे. बिल्कुल बोला, लेकिन आपके साथ बोल रहे थे ना. आप हम एक तो भारत के लोग आपके बाद किसी और पंथ के लिए बोल सकते हैं. सुन लीजिए, आप किसी के लिए बोल सकते हैं. बोलूंगा, अभी बोलता. आप बोल सकते हैं. अभी बोलूंगा, अभी बोलता. सुन लीजिए, अब यहीं से शुरू करते हैं. टेक इट फॉर ग्रांटेड. सारे कुछ नहीं है ऐसा. नहीं सर, तन से जुदा में किसी को भी पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं है. जो फॉलोअर इस्लाम है, तन से जुदा को ना फॉलो करता है, ना इंडोर्स करता है. दूसरे पे आइए, बोले गए कि नहीं बोले गए इस देश में? सर, दैट डजंट मीन आप सारे मुसलमानों को एक कटघरे में खड़ा कर दो. हम तो नहीं कर रहे. ये गलती यहाँ पर है. एक मिनट, यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी. पीछे मत जाइए. एएसआई ने कोई एफआईआर नहीं करी है. 11 गलत. हाँ 11 एसआई बताइए. डेट बताइए. डेट दीजिए. डेट एफआईआर की डेट दीजिए. टेल मी द डेट ऑफ द एफआईआर. In response to para number 28 and 29, it is submitted that though the situation at the monument is not comfortable, whenever any violation is reported, ASI local office has filed complaints with the police and show cause notices were given to the defaulter. This is the registered FIR. Doctor
ले ले, देयर इज नो एफआईआर। डॉक्टर ऐसा जाके ले ले, अभी दंगा हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं लेगा, कुछ भी बोल सकते हैं। एफआईआर नहीं है, नहीं आपको पावर नहीं पता है, 1 मिनट आपको कौन नहीं पता है। यहाँ पे भाषण दे रहे 5 लोग। I have a very small question and Dr. Rizvi साहब, हम सब मानते हैं कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। इस पर does anybody have any disagreement? Nobody has. So we have a consensus that this country must run by the constitution and as per the law of the land. Now I want to ask you, just because there is a mob that comes in and just because political leaders are justifying the actions of the law, should law be put into the dustbin? There is the right of the individual to approach a court of law. वो कोर्ट गया है, आपको कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं पसंद आ रहा, सर्वे नहीं पसंद आ रहा, आप हायर कोर्ट चले जाइए। आपको सुप्रीम कोर्ट जाकर भी तो यही मिला ना कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, ये आप पहले भी कर सकते थे। आई वॉन्ट टू आस्क यू, ये डराना धमकाना किस लिए कि जय श्री राम बोलोगे तो इसका मतलब आप किसी को नीचे दिखा रहे हो, आप जय श्री राम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मोदी का दौर है कि मुगलों का दौर है। ये दौर किसका है, क्यों और कौन किसको डरा रहा है? एक मिनट नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं है। आप लोग लग रहा है कि मुगलों के दौर में पहुंच गए हो, हमें तो लग रहा है कि मोदी जी के दौर में, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि मुगलों के दौर में। आप लोग मुगलों के दौर में पहुंच गए हो, इतना डर गए हो, इतना डरे हुए हो कि मुझे लग रहा है कि मुगलों के दौर में भी इतना डर न रहा। आप तय कर लीजिए कि हम डरे हुए हैं या हिंदू डरे हुए हैं या डरा रहे हैं, जय श्री राम बोल के डरा रहे हैं। मैं बता रहा हूं मैडम, ऐसा है कि जय श्री राम से कभी कोई नहीं डरा, कभी नहीं डरा और न डरेगा, इसलिए कि जय श्री राम का नारा कोई गलत नहीं है, हम उसको नहीं मानते। अल्लामा इकबाल ने इमामुल हिंद कहा है उन्हें, और सबने उसको एक्सेप्ट किया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप क्या यहां पे ये सारे लोग दाखिल हो जाएं और जय श्री राम आप पसंद करेंगे? आप पसंद करेंगे? इसी तरीके से ऑफिस में जाएं, सारे मेंबर पार्लियामेंट जय श्री राम पार्लियामेंट में घुस जाए। आप वो पार्लियामेंट, एक मिनट रुक गए, हम आपके बीच में नहीं बोले, 1 मिनट आप देखिए, 1 मिनट मैं क्लियर कर रहा हूं। इसी तरीके से हर चीज का एक डेकोरम है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है माशाअल्लाह, वहां जय श्री राम खूब लगाइए नारा, लेकिन अब ये कि आप हर मस्जिद में जाकर के जय श्री राम नारा लगाएंगे, क्या ये आपको लग रहा है कि ठीक हो रहा है? नहीं, एक मिनट नहीं, उस दिन जो हुआ उसकी 250 मीटर 300 मीटर दूर था। एक मिनट रुक जाइए, अभी बता दीजिए, बता रहे हैं। 1 मिनट, मैं एक चीज मैडम कह रहा हूं, बारात भी अगर गुजरती ना तब भी लोग छत पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि हो क्या रहा है। जब जय श्री राम इस तरीके से नारे, वरना एक दिन पहले 2 दिन पहले वही सर्वे हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इनकी तरफ से बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया, इनके लोगों ने किया कि वहां पे किनके लोगों ने नहीं, यही सब किस पर आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी के लोग, और ये भी बीजेपी के वकील साहब भी। कहाँ बीजेपी? आप इनको अरे भाई ऐसा है, रुक जाते हैं, बीजेपी को ये ऐसा है, क्या प्रूफ है बीजेपी को? योगी जी ने जो आप करते हो वही है, योगी जी बोलते हैं। योगी जी ने क्या कहा कि काशी भी है, मैं बीजेपी मथुरा भी है, ये बताइए, मैं बीजेपी आपने इल्जाम लगाया है, बोल के चले जाओगे, कुछ भी नहीं, एक निश्चित बोल रहा है, एक कह रहा है बीजेपी के। अरे बीजेपी के कैसे है? मैं तो मेंबर भी नहीं हूँ भैया, मैं वकील हूँ, मैं अपनी बात कोर्ट में कह रहा हूँ। अब मेरी बात को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आप बीजेपी की हो जाएगी, आप कोर्ट में मेरी बात अखिलेश जी सपोर्ट करें, मुझे मैं आपको बताऊं, देखिए सीनियर एडवोकेट हैं राजीव रामचंद्रन जी, इन्होंने परसों संविधान दिवस के मौके पर एक कोर्ट दिया है और उन्होंने कहा है कि तारीखी मसाजिद के खिलाफ शरंगेज मुहिम के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार। ये उन्होंने और वजह बताइए, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट वकील थे, सुन लीजिए 1 मिनट, है ना, गुज़िश्ता साल बनारस की तारीखी जान वापसी जामा मस्जिद में सर्वे की इजाजत देकर राजू
रामचंद्रन जी के रामचंद्रन जी कसाब के वकील थे, तो क्या वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे थे? इसका क्या मतलब है? अब ये बताइए, जफर जिलानी साहब, एक मिनट, ये मेरे भाई, एक मिनट, मैं आपको आप सुन लीजिए। जफर जिलानी साहब उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, ठोक के बाद बोल रहा हूं, और 2013 से लेकर 2017 तक थे, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, और राम मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जो ओवैसी साहब या जितने लोग बोल रहे हैं, तो क्या राम मंदिर का जो केस सुप्रीम कोर्ट में अपोज किया जा रहा था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी द्वारा जफर जिलानी के माध्यम से, वो समाजवादी पार्टी कर रही थी? नहीं, क्या मतलब है? बोलना चाह रहे हो? आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, आपकी बात नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इनके ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा था। आप आराम से जाके वहां पे हाईवे कर सकते थे। आपके साथ जो लोग आप आके नारेबाजी की, उससे आपसी स्वागत खराब हुआ, चाहे उससे इंटरवेंशन पहले त्रिपाठी जी और फिर आपके पास आए। त्रिपाठी जी पहले, ओके, त्रिपाठी जी आजाद घूम रहे हो, क्या गर्दन कमा देती? प्रशासन को चाहिए था, प्रशासन को चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए आप ऑर्डर 1 मिनट में चार्ज कैसे लगाया कि मेरी वजह से लोग मरे? आप बताइए, मैंने क्या केस में? मैंने अपनी बात गाँव मस्जिद में नोटिस ढूंढ रहे हो, ये कर रहे हो आप, मंदिर में घुस के मस्जिद बना और अपनी बात आप 47 के बाद बताइए, 47 के बाद एक मस्जिद दिखाइए। मैं 1 रिजवी साहब बात कर रहे हैं। एक घुट पानी पी लीजिए, और मैं आपको बताती हूँ, ये 1947 का जो कट ऑफ आप बता रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं, एक्ट है मैडम, एक ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आपने शायद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इसी के लिए कहा है, राजीव रामचंद्रन जी ने इसी के लिए कहा है, कहा होगा, लेकिन राजू रामचंद्रन का कहा इस देश में सुप्रीम कोर्ट का कहा नहीं माना जाता। राधिका जी, मुझे जरा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही माना जाएगा, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी फिर आ रही है। सवाल भी खड़े होंगे, तो सवाल तो खड़े, सवाल न खड़े हों, सवाल खड़े हैं, उन सवालों का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा। और आप से आपके चैनल के जरिए मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी जो आपने ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से वहां पे एक दरवाजा खोल दिया, उसको बंद कर दीजिए, वरना गांव हर मस्जिद में मंदिर ढूंढा जाएगा और लॉयर ढूंढिए, पेटिशन लेकर जाएगा। रिजवी साहब, एक मिनट, मैं रिजवी साहब से बिल्कुल सहमत हूं। खतरनाक है, देश को धमकी देने वाला है। ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी का जो दरवाजा खुला, गुजारिश कर रहा हूं कि बंद कर दीजिए, नहीं तो देश के हालात खराब हो जाएंगे। अरे कह रहा है हम सड़क पर उतर जाएंगे, 5 लोग मारे गए। जी साहब रुक जाइए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा सा अब शांति से। भारतवर्ष में जय श्री राम कहना, ये नारा खराब हो गया। बिल्कुल नहीं, ये फ्रॉड सेकुलरिज्म जो विवेक श्रीवास्तव ने अभी परिभाषित किया है, और जिसकी तारीफदारी ये लोग कर रहे हैं, जिसकी तरफदारी कर रहे हैं, जिसके साथ बैठे हुए, ये खतरनाक है। विष्णु जैन इस देश में किसी के भी खिलाफ नहीं है, आपकी बात में सुन रहा था, किसी के भी नहीं बोले प्लीज, आवाज किसी के भी खिलाफ विष्णु जैन आज तक की तारीख में एक कोई वाकया बताइए जब किसी के खिलाफ कुछ गलत मामला लेकर गए हो। अगर वो कहीं ये कह रहे हैं कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड था, अगर वो कहीं कह रहे हैं कि यहां ये मंदिर था, तो ये क्या गलत कर रहे हैं? इस देश में हिंदू मंदिरों के लिए, आस्था के लिए सवाल उठाना, ये तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ये काम तो देश की सरकारों को अगर उस रियल सेंस में सेकुलर होती नहीं तो खुद करना चाहिए। और इसके बाद जहां जहां मुसलमान बढ़ेगा, गलत है, गलत है, गलत है, और नहीं होना चाहिए। अगर कोर्ट को सही लगेगा कोर्ट ऑर्डर देगा, नहीं लगेगा तो कोर्ट उस पिटीशन को बाहर फेंक देगा, विष्णु के सामने पत्थर चलाएंगे, न्यायालय निर्णय देगा, न्यायालय निर्णय चलाएंगे, अरे हर उसमें बच्चे मर जाएंगे,
दोषी वो है नहीं, सुनिए, जिन्होंने पत्थर चलाने के लिए उकसाया। अरे पत्थर वाले पिटीशन दाखिल करना पत्थर माफ कीजिएगा, जनता आपकी भी बात सुनना चाहती है, जनता इनकी भी सुनना चाहती है, बोलने दीजिए। लौटने में लगाओगे? हमने लगाया भी नहीं। एक मिनट, अच्छा वो वहां थे, सुन लीजिए। फैक्ट नहीं है ना, पत्थरबाजी के बाद नारे लगाए और जिसने नारे लगाए उसने कोई गुनाह थोड़ी नहीं कर दिया। आप पत्थरबाजी करें, लोगों की जान चली गई, पुलिस वालों पे हमला हुआ, बच्चों के घर मर गए और ये हालत कर रहे हैं। इस तरह की बात करें, छोड़ दी। एक मिनट, मर गए, गिर गई थी ना, क्या जय श्री राम के नारे लगे थे ना, वर्ग के परिवार आंखों से आंसू नहीं निकला, क्या अखिलेश यादव कॉन्स्टिट्यूशन नहीं याद आया, क्या किसी नेता के परिवार का था, सुप्रीम कोर्ट नहीं याद आया, किसी नेता के परिवार का बच्चा था, एक नेता के परिवार का बच्चा, एक नेता के परिवार का बच्चा, विवेक जी, एक नेता के परिवार का बच्चा क्यों नहीं लीड कर रहा? सुप्रीम कोर्ट से नहीं गए, मस्जिद में हमला था, क्यों एक नेता के परिवार का बच्चा नहीं था संभल में? बताइए ना, क्यों वो गरीब घरों के बच्चे मर गए? अरे भाई साहब, क्यों मर गए? अगर वो मस्जिद वर्सेज पॉइंट ऑफ ऑर्डर, विष्णु जैन। अब देखिए नाविका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सारी चीख चिल्लाहट में डिबेट चली गई, इन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगा दिया कि मेरी वजह से 5 लोग मर गए। अब आपको कुछ मैं सिरे वाइज कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, उसको सुन लीजिए, और ईश्वर साक्षी है, जो रिकॉर्ड है वही बोल रहा हूँ, उसके बाद आप डिबेट करिएगा। केस फाइल होता है कोर्ट में 19 नवंबर 2024 को 2:38 पे माननीय न्यायालय गलत या सही आदेश देता है कि वहां पे एडवोकेट कमीशन के माध्यम से सर्वे किया जाए। एडवोकेट कमीशन ने हमें इन्फॉर्म किया कि हम आज सर्वे करने जा रहे हैं, 6 बजे सर्वे करेंगे। एडवोकेट कमीशन ने मस्जिद कमेटी के वकील को इन्फॉर्म किया कि भाई हम सर्वे करने जा रहे हैं, उन्होंने नोटिस रिसीव किया, उन्होंने कहा सर हम सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे। मस्जिद कमेटी के 3 लोग, 5 और अन्य लोग जो वहां की कमेटी के थे, वो, मैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील, डीएम, एसपी, हम लोग वहां मौके पे गए। अब जो एक बहुत ग्लॉसी स्टोरी दी गई है कि 19 नवंबर को कुछ नहीं हुआ, बिना कुछ पत्थर गुम्मे चले आ गए, उसका कारण है कि 2:38 पे जब ऑर्डर हुआ था 6 बजे सर्वे हो गया था, इसलिए गुम्मे और पत्थर नहीं चले थे। एडवोकेट कमीशन महोदय ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा, रिपोर्ट मतलब नोटिस में क्या लिखा है, एक पैरा पढ़ के सुना रहा हूं, 19 नवंबर के हालात आपको उस पैरा से समझ में आ जाएंगे। हूबहू अक्षर बाय अक्षर, कोट अनकोट, उक्त तिथि को उपरोक्त सभी की उपस्थिति में परिसर का करीब 1.5 घंटे तक सर्वे किया। परिसर के अंदर रोशनी की कमी थी, जिसकी वजह से आंशिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई। उक्त परिसर में सर्वे के दौरान काफी विघ्न उत्पन्न हुआ। परिसर के अंदर व बाहर काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी विरोध होने लगा। मस्जिद कमेटी की ओर से यह कहा गया कि नमाज होनी है, भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में सर्वे की कार्रवाई रोक दी गई। अब ये बताइए मुझे, जब ये कोर्ट के ऑर्डर का सर्वे, एक मिनट सर, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। जब ये कोर्ट के ऑर्डर का सर्वे हो रहा था, मैं सारे लोगों से बहुत अदब से, रिस्पेक्ट से पूछना चाहता हूं, क्या राइट था समाजवादी पार्टी के सांसद का सर्वे में घुसने का? क्या राइट था वहां के लोकल विधायक का सर्वे में घुसने का? कोर्ट के ऑर्डर की कार्रवाई चल रही थी, 500 लोग अंदर घुस गए, बाहर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए, और यही बात एडवोकेट कमिश्नर ने कही। बिना मतलब वही विकास दुबे गाड़ी पलट गई, विकास दुबे गाड़ी पलट गई, मान लिया, ठीक है। उसके बाद चुनाव में धांधली करी, चुनाव में धांधली करी, कथा सुना दी गई, सबने मान लिया। इंटरेस्टिंग ऐसा नहीं हो, मैं आप ही की बात बता रहा हूं। विष्णु जी ने एक बार नहीं कहा कि बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, उनने नारेबाजी करी, उनने वहां पर इस भाषा को, भाजपा की बात नहीं, भाईचारा की बात है। अभी इन्होंने एक ऑफिशियल प्रोसीडिंग का ऑफिशियल नोटिस पढ़ के सुनाया, बाहर नारे भी लग रहे थे, सर्वे पूरा नहीं होने दिया गया, सबको रोका गया। मीडिया ने दिखाया, हमको क्यों नहीं दिखाया गया कि व्यक्ति को, क्यों किसी ने दिखाया नहीं, किसी ने छापा ही नहीं, उसको मना किया। This is a long debate. This is a long debate. My only issue is that will courts in the country settle the disputes that exist? If anybody has a question of law and wants to take it to the court, is he or she free to do it or not? Can Jai Shri Ram be a war cry? Can any side, the right or the left, can any side prevent anybody from using the constitutional recourse of going to court? And in this country, will mobocracy rule or will democracy rule?
Will the Constitution be above every other thing, or will politics dictate how decisions will be made by the courts of law? That is the question. To my mind, yes. Why are these so many disputes opening up now? If the courts think these disputes should not arise in various parts of the country, the courts must take a view. But can anybody prevent individuals from going to the courts? That clearly cannot be the answer that politicians can come up with. Constitution above all. Unless each one of us respects that, we will always have mobocracies that will dictate. And that's not something this country will tolerate, because we are a democracy where Constitution rules. Thank you very much to all my panelists for joining me on this special edition of the Friday Spotlight on the News Hour. Thank you, viewers, for joining me. Good night and be safe.